Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. You all are welcome in interview session of agriculture. But before going to start the actual session, I would like to say something to you. So those who are new on this channel, so just at least subscribe it. It help you in getting notifications as I upload the video. So you will get early information. Now I'm not going to deal about the syllabus of agriculture because this is the interview session. You all are familiar with the syllabus. You already given the main examination. So what kind of question they are going to ask? Okay. So in real time of interview, what you are experiencing and in what way you should answer them, and that your answer must be convincible. That must convince the boards and board. ओके सो क्या होगा इसमें कि जो बोर्ड है वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो आपको आपके आंसर को अच्छे से स्वागत करे और आपको अच्छा नंबर दे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को दोनों मीडियम में बनाने के लिए। इट विल हेल्प बोथ ऑफ यू, आज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बट जो बोटनी क्या है ये इसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी होगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वट एवर आई आंसर, so all the answer in English medium. So first of all, just take a question, and one more thing I would like to say that just experience. जैसे तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो उस टाइम में यू शुड एक्सपीरियंस लाइक यू आर इन द रियल इंटरव्यू बिफोर ओके लिस्टिंग माई आंसर। तो मेरा आंसर सुनने से पहले आप एटलीस्ट मेंटली इस बात को तैयार हो जाओ कि आप भी इसका आंसर कर पा रहे हो। तो आप इसको जो स्लाइड है इसको आप वहीं पे पॉज करके आप पहले सोचो आपका आंसर क्या होगा, एंड आफ्टर दैट यू शुड हियर माई आंसर। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और दिस इज नॉट द ओनली वन वीडियो, बिकॉज इन अ सिंगल वीडियो हाउ यू कैन कवर होल सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर। सो मे आई एम गेटिंग इन्फोर्स टू मेक एट लीस्ट 4-5 वीडियो ऑफ 30 minutes at least. So in that I will cover all these things, but for you go through all these questions, their answers, and sometime may you are not convinced with me. So for that you need to write in the YouTube message box about what kind of doubt you have. तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूँ। So let's start. So now the question is, nowadays lifestyle diseases are increasing alarming in India. We are also dealing with corona pandemic and large scale malnutrition on the population. Is there any method by which we can address both of the problems together? Is there any method by which we can address both of the problem together? See, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आपके दिमाग में दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो आप क्वेश्चन नहीं समझे तो आप पार्डन कह के बोर्ड से टाइम ले लो। दूसरा, यहाँ पे आप एक ट्रिक अपनाओ, अगर क्वेश्चन का आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप उनको पार्डन बोलो, वो जब तक बोलते हैं तब तक आप अपना माइंड फ्रेम आंसर कर लो। अब जब इसका आंसर दोगे तो व्हाट इज देयर एक्चुअल आंसर? आंसर कुछ भी एक्चुअल नहीं होता है, द वे वट एवर द वे यू आर गोइंग टू ऑप्ट. So okay, and if that way, if that point and content are effective and logical, then definitely the board will convinced. लेकिन अगर वो नहीं है लॉजिकल तो फिर कन्विंस नहीं होगा। सो फॉर हियर योर आंसर इज सर बायोफोर्टिफिकेशन and biofortified food. So okay, because biofortification is the only way through that we are breeding crops with higher content of vitamins, micronutrients, good quality of proteins containing amino acids such as lysine, and good fats such as omega-3 fatty acids. So all these items is the most practical way to eradicate malnutrition and lifestyle disease in human population. तो बायोफोर्टिफिकेशन मैंने कहा अभी, बायोफोर्टिफाइड जो फूड है अगर हम उसको डेवलप करते हैं, रेज करते हैं, दैट कंटेन ऑल दिस थिंग्स इन
qualitative as well as in quantitative manners should and be supplied to the peoples, so definitely whatever the malnutrition problem, so that will eradicate it. तो ये आंसर इसको आप लोगों को यहाँ पे करना है। अब इस आंसर में हमने 3 बातें जो ऐड किया, और ये जो बातें हैं इसको अगर बोर्ड ने गौर कर लिया तो हो सकता है वो आपके नेट में आ सकता है। तो आप हमेशा ये भी ट्राई करते रहो कि हाउ यू शुड ट्रैप द होल बोर्ड इन योर नेट और इन योर बास्केट। जैसे मैंने कहा कि कंटेंट ऑफ विटामिन, micronutrients, good quality of proteins that contain amino acid, lysine, good fat that are the omega-3 fatty acids, and is the most practical way to eradicate malnutrition. अब हो सकता है बोर्ड का अगला सवाल आपसे आए कि अमीनो एसिड क्या होता है, या लाइसिन क्या है, या अमीनो एसिड्स हैं तो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, या ओमेगा-3 फैटी एसिड क्या है, इससे क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, या मेल न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन है। तो आपसे हो सकता है अगर इस बास्केट में बोर्ड आ गया तो आपको इन पॉइंट्स भी तैयारी करके चलनी है कि वट एवर द वर्ड यू आर सप्लाइंग अगेंस्ट द बोर्ड, सो योर वर्ड ओके गिव देम द क्लू टू अगेन क्वेश्चन यू. So it's your own practice that make you perfect to throw some tips, and by that the board getting in your basket. Clear ना? चलो next question लेते हैं हम लोग. Our next question is, what are cyanobacteria considered useful in paddy field? What are cyanobacteria considered useful in paddy field? अब साइनोबैक्टीरिया से आपके दिमाग में 2 बातें आ रहा होगा, एक तो आ रहा होगा ब्लू ग्रीन अलगी के विषय में, ठीक है वही है, दोनों बातें एक ही हैं, और दूसरा ये भी आ रहा होगा कि जो साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन अलगी है दे आर द नाइट्रोजन फिक्सेसर हैं, ठीक है, एंड वी ऑल नो, ठीक है ना, वेयर दे लिव, सो दे लिव इन बेसिकली आइदर इन सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक हैबिटेट, ओके, and paddy field basically contain water, so therefore cyanobacteria can be inoculated in this field for nitrogen fertility. So how you answer? So just you answer कि sir cyanobacteria are capable of N2 fixation, they however live in semi-aquatic or aquatic habitat, and paddy field already contain water, therefore cyanobacteria can be inoculated in this field for nitrogen fertility. So आंसर इज ओवर. अब यहाँ भी आपने जो वर्ड यूज किया N2 फिक्सेशन में, दे आस्क्ड यू अबाउट व्हाट इज N2 फिक्सेशन. हो सकता है पूछ ले भाई साइनोबैक्टीरिया किस फैमिली से है, मैं दे आस्क्ड यू ओके अदर जो नाइट्रोजन जो फर्टिलिटी है, सो इन दैट प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है. तो आपको ऐसे सवालों के लिए भी तैयारी करना है, क्योंकि आपका जो आंसर होता है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो उसे क्लू देता है दूसरे क्वेश्चन करने के लिए. सो वट एवर द क्लू यू आर पासिंग, सो यू शुड वर्क ऑन दैट. सो दिस इज द ओनली ट्रिक ऑफ द इंटरव्यू, ओके. और आप उनको आप कोशिश वंस ट्वाइस थ्राइस एज पॉसिबल, जितना बार भी होता है उतना बार करो. इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं बोर्ड कहीं ना कहीं तो गिरेगा, किसी न किसी क्वेश्चन पे तो आपको आपकी तरफ आके फंसेगा, और बोर्ड कैसे न कैसे आपने नेट में लाना ही लाना है. और जो स्टूडेंट्स ऐसा कर पाता है डेफिनेटली दे स्कोर मास्टर इन देयर इंटरव्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे. द क्वेश्चन इज हाउ डू माइक्रोब्स रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय केमिकल्स. अब क्वेश्चन देखो, आंसर आप लोग सोचो, कुछ तो आप लोग भी करो, और अगर नहीं सोच पाते तो फिर मैं आंसर करता हूँ. तो चलो इसका आंसर है क्या होना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ डू माइक्रोब्स रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय केमिकल. सो एज योर आंसर, सो सर माइक्रोब्स कैन एब्जॉर्ब एंड एक्यूमुलेट द केमिकल एज वेल एज मेटाबोलाइज, ओके, as well as the
they metabolize the same so as to clean the environment. So whatever they absorb, clear na, whatever they absorb, whatever they accumulate, whatever they metabolized, so in that way they clean up the environment. Take the example like the oil vapors. Definitely you know about the Pseudomonas putida. So whenever oil spill takes place in a water body or huge water body like the oceans, in that it says Pseudomonas putida. Pseudomonas putida, I mean. So they simply absorb the oils and they metabolize or convert them in some useful product. In that way they clean up the water body and protect the life of the underwater species. So your answer is this one. Okay, next question is, do you have any idea about GM crop? Tell us what is it. So first they ask what? Do you have any idea about GM crop? With your name may they asked. Definitely, I being experience of agriculture, your answer is yes sir, I have some idea. And then definitely they ask, tell us what is it. So whatever the information you have about GM crop, so you should share. Again they add in your answer, while creating genetically modified plant or crop, genetic barrier are not respected, how can this be dangerous in the long run? While creating genetically modified plant or crop, genetic barrier are not respected, how can this be dangerous in the long run? तो लंबे समय में ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम इसका मिसयूज करते हैं या इसका हम सही यूज नहीं करते हैं तब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखना होगा कि इफ वी आर नॉट taking measures, definitely all these things creates genetic pollution. It may raise some superweeds or super insecticides, so that again become problems. So in that way it will create the problem. Fine, over. बातें क्लियर हो गया? ठीक है कि एक तो पहले आपसे पूछेगा कि जो जीएम क्रॉप है ये क्या होता है, तो आप सब जानते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है ये। कोई एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपको, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे आप तमाम एग्जाम्पल कर सकते हो कि बीटी कॉटन है या गोल्डन राइस है या बीटी मस्टर्ड हो गया या जीएम मस्टर्ड है, आप ऐसे कर सकते हो। अब वही कहेगा सवाल कि जब इसको तैयार करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, और जो जेनेटिक बैरियर है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये खतरनाक क्या होगा कि जीन स्तर को आप जीन स्तर पे जो प्लांट का जो वैरायटी जो नया रेज करोगे उसको हम पोल्यूट कर देंगे। समटाइम जो वीड्स हैं अनवांटेड प्लांट एडवांटेड प्लेस, उसके जगह पे हम सुपर वीड्स क्रिएट कर लेंगे। जो सुपर वीड्स का जो लाइफ होगा बढ़ जाएगा वो, और काफ़ी हार्म कर सकता है। अगेन वो दोनों को मोनोकोट डाइकोट दोनों को कर सकता है वो। और इससे सुपर इंसेक्टिसाइड भी इससे डेवलप हो सकता है, बिकॉज ग्रेजुअली इंसेक्ट डेवलप रेजिस्टेंस ओवर दैट, सो इन दैट वे द थिंग विल डेवलप। तो आपका आंसर में इन 3 बातों को शामिल करना है। तो इससे क्या होगा, अगेन दे आस्क्ड यू अबाउट व्हाट इज सुपर वीड्स, व्हाट इज जेनेटिक पॉल्यूशन, व्हाट इज सुपर इंसेक्टिसाइड्स। तो आप यहाँ फिर से उनको अपनी तरफ ट्रैप कर सकोगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे है, गिव द 2 रीजन व्हाई द पेटेंट बासमती शुड नॉट हैव गॉन टू एन अमेरिकन कंपनी। अब मान लो अमेरिकन कंपनी ने जो बासमती जो राइस है इस पर क्लेम किया था, उसने एक हाइब्रिड वैरायटी को क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद उसने क्लेम किया कि इस पे पेटेंट का राइट मुझे मिलना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सो हाउ इन व्हाट मैनर यू शुड आंसर देम? So you should answer them, sir, basmati and scented rice has been in cultivation in India since prehistoric time. So if America cultivates its hybrid variety, it doesn't mean they have claimed to have patent right over all scented form of rice. So whatever the variety they raised,
that are not the actual variety like us, and whatever they claim because of their size and because of their scent, so it is not okay. ये जो लेकर के जो आए थे पेटेंट के लिए, ये पेटेंट के जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं, दैट्स वाई उसको पेटेंट नहीं दिया जा सकता था। तो इसको आप आंसर से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है पूछ ले पेटेंट क्या होता है, या इंडिया में जो पेटेंट है वो कितने साल के लिए दिया जाता है, या मेडिसिन का पेटेंट है, या कोई प्लांट वैरायटी का पेटेंट है, ये कितने वर्ष के लिए होता है, या ठीक है, या ट्राइफेड करके आपसे पूछ लेगा ये क्या है, या ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे सवाल कहीं ना कहीं से वो मिला जुला के पूछ सकता है। तो आपको वहाँ भी ध्यान रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब पढ़ते हो IPR, तो IPR में आपको पेटेंट के विषय में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फैमिलियर विथ JFM? व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड JFM? तो JFM, अब मान लो पहला सवाल है कि आपको पूछेगा कि डू यू फैमिलियर विथ JFM? Definitely you are familiar, because in agriculture they just proper topic are on a JFM. So once you are answering, again they asked you what is the main idea behind JFM. So their interest is not the JFM, their interest is in idea behind JFM. So for that you should answer them, so it is a government private entrepreneurship for uptake of forest, and therefore the forest department prepared the plan, procedures, sapling and equipments for planting and plant protections, while the local take care of the plant till they become mature, and after that together they share their benefit. So this is the main idea, by including the locals the government achieve their objectives. Okay, so this is the main idea basically. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन देखते हो आप वीडियो पॉज करके आप आंसर सुनो, पहले अपना आंसर दो और उसके बाद इस आंसर को करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बिकम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? इफ यू नो अबाउट दैट यू शुड आंसर इट, ठीक है। इफ यू डोंट नो, मैंने पहले ही बताया स्किप कर जाओ, और जब नहीं जानते हो तो आंसर क्या है इसका होना चाहिए, if rows of tree and shrubs are left intact while clearing the area for cultivation, so this will prevent soil erosion and invasion of weeds, and there will be quicker recovery of forest after the area is abandoned. So in that we should answer them. Okay, so next question is, tell us two important contribution of MS Swaminathan. So they asked about, do you know about, do you heard about MS Swaminathan? Who is MS Swaminathan? In that scenario, your answer is the father of Indian Green Revolution. May they ask about, tell us two important contribution of MS Swaminathan. Swaminathan को आप लोग MS Swaminathan को थोड़ा सा पढ़ लोगे आप लोग, and what they actually contributed. Okay, so you should discuss their his contribution, और कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट रहा है उसमें आप लोग इन दो बातों को शेयर कर सकते हो, लाइक द एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन में पूछा है टेल अस टू इम्पोर्टेंट, तो अब यहाँ पे 3 मत करने लगना। इफ यू आर आंसरिंग 3 इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इट मीन्स आप अपना नॉलेज दिखा रहे हो, तो देयर इज नो नीड टू शो योर नॉलेज, वट एवर यू हैव। Definitely you are being a student of agriculture, you have a lot of information about MS Swaminathan. So what are the most important you should share with them, and need not to try give them extra exposures. So your answer is, sir, development of short duration of high yielding variety of rice including scented basmati is one, and another one is the development of light colored wheat variety Sarbati Sunara Pusha Larma. Okay, so these
as these are the two contribution given by him to the and he was memorized for okay lot of things, but these are the most important two contribution given by Swaminathan. Next question is, in view of current food crisis, it is said that we need another green revolution. May they ask you, बिकॉज अभी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही, स्वामीनाथन की बात हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ से सवाल एक नया जनरेट करे कि इन व्यू ऑफ करंट फूड क्राइसिस इट इज सेड दैट वी नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, देन व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अर्लियर ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप अगर सही से पढ़े हो या जानते हो। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो यू कैन नॉट आंसर इट। ठीक है, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ। व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, द फार्मर्स starts using the fertilizers beyond the permissible amounts. Even they use pesticide in haphazard manners. Okay, so gradually the extensive use of fertilizers and pesticide degraded the soil conformation and degrade the soil productivity, and therefore the agriculture production falls. And now we need once again to revitalize the agriculture, and okay, so in the wake of that we need another green revolutions. Okay, so this is your answer. Whatever you have the thought, you should think about that. Whatever I have the information, I just said it. And the last question is here: what two technology made us self-sufficient in food production? मैं भी एक बार और कह दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो बच्चे चाहते हो कि भाई उनको नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह दे रहा हूँ कि दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ द बोटनी विल टेक एट लीस्ट 4-5 सेशन, एंड इन दैट आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स। अनदर ऑप्शनल्स में भी मैंने कुछ वीडियो बनाया है, और मैं जीएस पे प्रॉपर जो बीपीएससी है यूपीएससी का जो भी है, तो मैं बीपीएससी को लेकर के प्रॉपर इस पर बना रहा हूँ और आने वाले समय में लाइव भी कर सकता हूँ। आई एम राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव ऑल दोज बेस्ट थिंग दैट हेल्प द स्टूडेंट्स। तो हो सकता है लाइव भी हम अभी आए आप लोगों के साथ इंटरव्यू सेशन के लिए। इन दैट आई विल आस्क नॉट ओनली फ्रॉम द ऑप्शनल, आल्सो फ्रॉम द जीएस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर यू। और मैं एक चीज़ और ये भी कहूँगा कि भाई एक जगह जहाँ भी आप लोग कोई भी इंटरव्यू करते हो तो आप क्रॉस इंटरव्यू भी कर लिया करो, सो इट विल हेल्प यू। चूँकि आपके बोर्ड में क्या सवाल पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, नो एंड नो। बोटनी एग्रीकल्चर का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और वो सिलेबस बहुत ही काफ़ी अपडेटेड भी है। तो इन द नेक्स्ट जो हमारा जो स्लाइड होगा उस इन दैट आई विल शेयर यू अबाउट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन विद द लास्ट 6 मंथ जो जीएस में क्या क्या चर्चा में रहा है। एक दूसरा वीडियो में बिहार का जो एग्रीकल्चर उसको लेकर के बनाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। जो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैं, फ्लड बड़ा सा प्रॉब्लम है बिहार में, इरीगेशन फैसिलिटी में प्रॉब्लम है, सॉइल वहाँ का जो है प्रोफाइल वहाँ पर बहुत ख़राब है, टेस्टिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ठीक है, फार्मिंग का वहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छा नहीं, फर्टिलाइजर्स अवेलेबिलिटी जो है सो प्रॉपर वे में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का हाल बहुत अच्छा अब हुआ है जाकर के, पर पहले नहीं था। तो काफ़ी जो चैलेंजेस हमारे लिए वहाँ पे हैं या तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और अगले सेशन में इस एक सवाल में छोड़ जा रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका आंसर कर सकोगे। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछूंगा आप लोग से, उम्मीद करता हूँ इस सवाल का आंसर आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर छोड़ जाना, और ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। अगर आंसर नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।